protons and neutrons present in the nucleus of an atom. ठीक है? If you want to write, you can write down atomic mass number. Atomic mass number can be defined as the sum of number of protons and number of neutrons present in the nucleus of an atom. Sir, can you please repeat? Sure. Atomic mass number can be defined as the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. ठीक है? अगर मैं heading, you can see the board also. Atomic mass number. Atomic mass number. It is represented by symbol capital A. ठीक है? An atomic mass number is equal to sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom of the element. That is, atomic mass number रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल ए से, इज इक्वल टू P प्लस N. A equals P plus N. Atomic mass number is equal to sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an element. ठीक है, ये तो हो गया एटॉमिक मास नंबर. बट एटॉमिक मास नंबर इज entirely different from atomic mass of an element. Mass number is different thing and atomic mass is different thing. How can we define atomic mass of an element? Atomic mass of an element is defined as the mass of an atom of an element. Don't write. ठीक है, ये मैंने लिखवा दिया था कि atomic mass can be defined as mass of an atom of an element. But this atomic mass is very small mass, so it cannot be accurately measured easily. Therefore, it is always measured in relative to some other atoms. First of all, hydrogen was taken as standard for measuring the relative atomic masses of elements. And what is relative atomic mass of an element? Relative atomic mass of an element was earlier defined as the mass of an atom of element as compared to mass of a hydrogen atom. That means the atomic mass of an element means the number of times an atom of an element is heavier than one hydrogen atom having mass 1 AMU. ये मैंने करा दिया था, लिखवा दिया था. लिखा था आपने? Yes, sir. Yes, sir. Then, but ये भी बताया था मैंने आपको कि हाइड्रोजन हैज आइसोटॉप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. याद है आपको? लिखा था आपने? हाइड्रोजन हैज 3 isotopes, protium, deuterium and tritium. Since hydrogen atoms are of 3 types, they have 3 different types of atomic masses. So later on, scientists discarded hydrogen as the standard for measuring atomic masses of elements. Later on, IUPAC suggested that we should take carbon-12 isotope, which is most abundantly occurring isotope of carbon, for taking
as a reference to determine the atomic mass of other elements. ठीक है, और कार्बन 12 के टर्म्स में हम रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the relative mass of its atom as compared to 1/12 of mass of carbon 12 taken as 1 AMU. ये लिखा था डेफिनेशन ये वाली कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट या एटॉमिक मास की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, यही सही डेफिनेशन है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट can be defined as the relative mass of an atom of an element as compared to 1/12 of mass of carbon 12 isotope taken as 1U. ठीक है, that means atomic mass of an element equals the mass of an atom of element divided by 1/12 of mass of carbon 12 atom. ठीक है, इसका सिंपल मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन। यस सर बोर्ड ब्लर आ रहा है। बोर्ड ब्लर आ रहा है, अभी आपको दिख नहीं रहा है? सर क्लियर है। तो आ जाएगा बेटा, वो नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है ना, इसलिए अभी आ गया होगा। आ गया क्या? बोर्ड क्लियर हो गया? नो सर अभी थोड़ा सा ब्लर है। सर ब्लर आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ब्लर है अभी। ऑल राइट, वेट, अभी जब क्लियर हो जाता है आप मुझे बता देना, या मैं एक बार रीड कर देता हूँ। ठीक है, एटॉमिक मास, ये लिखा है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट as compared to 1/12 of mass of carbon 12 isotope taken as 1U. नीचे मैथमेटिकल फॉर्मेशन में क्या लिखा है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब आप लिख लीजिए जैसा मैंने डिक्टेट किया वैसे ही। लिख पा रहे हैं क्या? यस सर। ऑल राइट। सर व्हाट इज दिस रिलेटिव मास? रिलेटिव मास मीन्स एज कंपेयर टू, इन कंपेरिजन टू। रिलेटिव मतलब इन रिलेशन टू, तो मतलब रिलेटिव का मतलब क्या हुआ कि कार्बन 12 का जो भी मास होगा, कितना होता है कार्बन 12 का मास? 12, उसका 1/12 हिस्सा से कितने टाइम्स हैवी है किसी एलिमेंट का एक एटम, वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। सो दिस डेफिनेशन मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट is heavier than 1/12 of mass of carbon 12। ठीक है, इसके नीचे आप चाहो तो लिख लो सिंपल, द above definition means, write down, the above definition means
The atomic mass of an element is the atomic mass of an element is the number of times atomic mass of an element is the number of times an atom of an element number of times an atom of an element is heavier than 1/12 of mass of carbon 12 atom. ठीक है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं एटॉमिक मास को? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स an atom of an element is heavier than 1/12 of mass of carbon 12 atom. यही एटॉमिक मास की डेफिनेशन है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर, तो फिर आप ये डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। एटॉमिक मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब देखो बच्चों, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास फ्रैक्शनल होता है, जैसे क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का एक आइसोटॉप क्या होता है? Cl35 एंड 17। दूसरा होता है Cl17 एंड 37। इसका परसेंटेज अबंडेंस जो है ये कितना है? 75% और ये होता है 25%। दे आर ऑकरिंग इन नेचर इन द रेशियो 75% एंड 25%। इसका मतलब दोनों आइसोटॉप का परसेंटेज अबंडेंस सफिशिएंट है, इसलिए इनका एटॉमिक मास, क्लोरीन का एटॉमिक मास, एग्जैक्ट एटॉमिक मास ना तो हम 35 मानते हैं और ना ही 37 मानते हैं। इसके लिए हम क्या निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ऐसे एलिमेंट्स जिनके आइसोटॉप्स का परसेंटेज अबंडेंस जो नेचर में पाया जाता है, जिस परसेंटेज में नेचर में पाए जाते हैं, अगर वो सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो उनका हम फ्रैक्शनल और एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस के लिए हम क्या निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आइसोटॉप एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप, एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटॉप इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस, into its percentage abundance plus atomic mass of second isotope into its percentage abundance upon sum of percentage abundance। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जब भी कोई भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स सफिशिएंट अमाउंट में नेचर में पाए जाते हैं, तो किसी एक के एटॉमिक मास को एटॉमिक मास कंसिडर करना जेन्युइन नहीं होगा, जस्टिफाइड नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं? उस एलिमेंट के लिए एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। और एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू atomic mass of one isotope into the percentage abundance of that isotope plus atomic mass of another isotope into percentage abundance of the second isotope upon sum of percentage abundances। अब इसके हिसाब से अगर आप क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल्स, देखो एटॉमिक मास ऑफ पहला आइसोटॉप कितना है? फर्स्ट आइसोटॉप 35 इंटू परसेंटेज अबंडेंस कितना है? 75%। ठीक, प्लस सेकेंड आइसोटॉप का एटॉमिक मास 37, ठीक है, इंटू परसेंटेज अबंडेंस कितना? 25%।
अपॉन सम ऑफ परसेंटेज अबंडेंस कितना हो जाएगा 75 प्लस 25 100। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देन जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 35.5 U। इसका मतलब क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35.5 U। सर ये आपने ऊपर क्या लिखा है, एटॉमिक मास ऑफ? एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटॉप इनटू परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है, प्लस इसी के आगे आप लिखना प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप इनटू परसेंटेज अबंडेंस, फिर पूरे का अपॉन Sir, सम ऑफ परसेंटेज अबंडेंस। यस बेटा। sir, can you explain what आर्ची, is isotope? isotopes are the atoms of same element having different atomic masses। ठीक है, एक ही एलिमेंट के ऐसे डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है उनको आइसोटॉप्स कहते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूँ। हाइड्रोजन का भी आइसोटॉप बताया था आपको, कार्बन के भी बताया था, और उसके बाद क्लोरीन के बताया था, लिखवाया भी है कॉपी में। मे यू बी एब्सेंट इन दैट क्लास। ठीक है, सो आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। जैसे क्लोरीन का आइसोटॉप क्या है, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर सेम रहेगा दोनों में। अभी मैंने लिखा था क्लोरीन के दो प्रकार के एटम होते हैं, दो आइसोटॉप्स होते हैं, एटॉमिक नंबर दोनों में 17 होता है, लेकिन एक का मास नंबर 35 होता है, दूसरे का 37 होता है। तो जब एटॉमिक मास अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तब हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। आ रही बात समझ में? सर बात समझ में आ गई आपको? सर हाँ डाउट हरीश है बोलो। Yes, sir. हाँ बोलो सर, हमें हरीश। एवरेज एटॉमिक मास निकालने की जरूरत ही क्यों है? अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और अगर उस केमिकल रिएक्शन मुझे पता है कि मेरे पास सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन 35 के एटम्स हैं, तो फिर मुझे क्लोरीन 17 की जरूरत ही नहीं, क्या एटॉमिक मास की जरूरत ही नहीं है, तो फिर मैं उसको भी अकाउंट में क्यों ले रहा हूँ? अच्छा, हाँ मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं अगर क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि मैंने हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करा दिया क्लोरीन गैस से और बन गया 2HCl, सपोज हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्लोरीन 35 वाला है कि 37 वाला है? अब मुझे HCl का मास निकालना, तो HCl का मास निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? हाइड्रोजन का एक और क्लोरीन का ले लिया 35.5, तो इसका मास आ गया 36.5। क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 36.5। ठीक है, हमको पता ही नहीं है कि ये 35 वाला है कि 37 वाला है। अगर आप 35 वाला लोगे तो 36 होगा, 37 वाला लोगे तो 38 हो जाएगा, जबकि HCl का जो मास होता है वो 36.5 होता है, ना तो 36 होता है और ना ही 38 होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइसोटॉप्स के मास अलग होते हैं बेटा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। आप जब रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन क्लोरीन का होगा, और क्लोरीन की रिएक्शन किसकी वजह से होगी? उसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी, और इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों आइसोटॉप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। ठीक है, सो इफ टू डिफरेंट आइसोटॉप्स आर देयर, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज विल रिमेन सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी, देखने में भी एक जैसा ही लगेगा, वो सिर्फ मास अलग होता है। बाकी आप देख के उसको कभी भी गेस नहीं कर सकते कि वो 35 वाला है कि 37 वाला है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन भी कराओगे तो केमिकल रिएक्शन भी सेम रहेंगी। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो अगर हमको किसी मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास निकालना है तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कौन सा आइसोटॉप लेना है, 35 वाला लेना है कि 37 वाला लेना है। इसलिए एवरेज निकाल लिया ताकि हमेशा हम एवरेज एटॉमिक मास ही लेंगे क्लोरीन का, कोई सा भी आइसोटॉप हो। हरीश? यस सर। ऑल राइट। अब देखिए, अब हमने जब ये एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया तो इसका मतलब
एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है, उस एटॉमिक मास की डेफिनेशन को भी हमको अब रेक्टिफाई करने की जरूरत है। हमको एटॉमिक सर मास की एक ऐसी डेफिनेशन बनानी। यस, सर ये आपने नीचे क्या लिखा है सर, दिख ही नहीं रहा हो। कहाँ पे? ये जहाँ मेरा पेन है, यस सर, ये पूरी लाइन। AVG। AVG मतलब एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl, क्लोरीन। थोड़ा मोबाइल को रोटेट करके देखो बेटा, पूरा बोर्ड दिखेगा आपको। ठीक है, यस सर। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, इक्वल्स 35 एटॉमिक मास हो गया पहले आइसोटॉप का, मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज अबंडेंस 75%, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप इंटू परसेंटेज अबंडेंस 25, अपॉन सम ऑफ परसेंटेज अबंडेंस कितना हो जाएगा 75 प्लस 25 100। पूरे को सॉल्व करेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 35.5 U। सर ये समझ में आ गया परसेंटेज दामिनी? का क्या मतलब है? यस सर। यस, वेरी गुड। अबंडेंस का मतलब होता है कि ये नेचर में कितने अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमको 100 क्लोरीन के एटम्स मिले, क्लोरीन के 100 एटम्स मिले। अब उसमें से कितने होंगे क्लोरीन 35 वाले और कितने होंगे क्लोरीन 37 वाले? ठीक है, तो आउट ऑफ 100 क्लोरीन एटम्स 75 होते हैं किसके 35 क्लोरीन एटम, और 25 होंगे किसके क्लोरीन 37 के। इसका मतलब परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 इज 75%, और क्लोरीन 37 का परसेंटेज अबंडेंस 25%। ठीक सर है, लेकिन हमें ये कितने कैसे परसेंट पता चलेगा कि ये 75 और ये 25 है इनकी परसेंटेज अबंडेंस? यस, वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली ये परसेंटेज नहीं निकलते, ये निकलते हैं रेशियो में, और इनका रेशियो होता है 3:1। आप जब टोटल क्लोरीन निकालोगे, टोटल क्लोरीन मान लीजिए कोई वॉल्यूम ले लिया आपने क्लोरीन का, क्लोरीन गैस किसी भी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर हुई, तो जो क्लोरीन गैस मैन्युफैक्चर हुई उसमें क्लोरीन के जो दो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होंगे, उसमें उन एक होगा 35 मास वाला, एक होगा 37 मास वाला, और दोनों का रेशियो कितना होता है 3:1 के रेशियो में ये पाए जाते हैं। मतलब 3 टाइम्स मास होगा क्लोरीन 35 का, और 1 टाइप मास होगा किसका क्लोरीन 37 का। बोथ आर प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। सर लेकिन अगर उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो हम पता कैसे लगाएंगे कि उसमें क्लोरीन 35 और 37 है? आपको थोड़ी पता लगाना है, ये साइंटिस्ट ने IPSC ने पता करके एवरेज निकाल के दिया है आपको कि ये होता ही होता है। क्लोरीन का मान लीजिए आपने 100 ml लिया, तो उसमें से 75 ml क्लोरीन 35 वाला होगा और 25 ml 37 वाला होगा। अब उसको निकाला कैसे? बाई कंपेयरिंग विथ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 1 AMU। ठीक है, तो सर दोनों तो इनसे दोनों जितने क्वेश्चन भी, कैसे आएंगे? इससे क्वेश्चन ये कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा डिफाइन एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन में पहले सबसे सिंपल डेफिनेशन हमने आपको बताई थी कि इट कैन बी डिफाइंड एज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है एग्जाम में। ठीक है, फिर दूसरी डेफिनेशन हमने आपको बताई हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के, जब हमने कंपेयर किया रिलेटिव मास निकाला। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू mass of one hydrogen atom. That means the number of times an atom of an element is heavier than one hydrogen atom, ठीक है, is known as relative atomic mass of element. इसी रिलेटिव एटॉमिक मास को फिर हमने दूसरे तरीके से एक और डिफाइन किया। क्यों डिफाइन किया? क्योंकि हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, तीनों का परसेंटेज अबंडेंस बहुत कम है, इसलिए हम इनको किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते थे और उसका एवरेज भी नहीं निकाल सकते। तब साइंटिस्ट ने क्या किया, दूसरा एलिमेंट डिसाइड किया, कौन सा? कार्बन 12, जिसमें कार्बन 12 का मास है, और उसको स्टैंडर्ड मान के एटॉमिक मास की डेफिनेशन दी, और क्या बोला कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 1 AMU। इसका मतलब
the number of times an atom of an element is heavier than 1/12 of mass of carbon 12. ये रिलेटिव। लेकिन जब क्लोरीन की बात आ गई तो जो पहले डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन भी अब चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि क्लोरीन के परसेंटेज अबेंडेंस बहुत ज़्यादा हैं, 75% और 25%, दीज आर सिग्निफिकेंट नंबर्स। इसलिए अब जरूरत पड़ गई कि जो एटॉमिक मास है उसकी फाइनल डेफिनेशन बनाई जाए, और फाइनल डेफिनेशन जो आएगी वो क्या होगी? एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब रिलेटिव तो है ही, कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में तो है ही, लेकिन एवरेज निकालने के बाद। इसलिए अब आके लिखिए 10 एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज करेक्टली डिफाइंड एज। ये फाइनल डेफिनेशन होगी, यही वाली आप लिखेंगे एग्जाम में जब पूछा जाएगा। 10 एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज करेक्टली डिफाइंड एज the average relative, एवरेज भी है रिलेटिव भी है, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ an atom of an element as compared to 1/12 of mass of carbon 12 isotope taken as 1 AMU। ये हो गई एटॉमिक मास की करेक्ट डेफिनेशन। मैं रीड कर देता हूँ। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। सिर्फ रिलेटिव नहीं, एवरेज रिलेटिव। द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 of mass of carbon 12 isotope taken as 1 AMU। That is average atomic mass of an element equals average atomic mass of an atom of element as compared to 1/12 of mass of carbon 12। सर एक बार उसे रीड कर दीजिए। क्या बात है, सिर्फ सृष्टि को दिक्कत आ रही, बाकी को दिक्कत आ रही क्या ब्लड में, बोर्ड में? सर पहले पहले ब्लर आ रहा है, फिर धीरे धीरे सही हो रहा है। सर ब्लर आ रहा सृष्टि है। अभी आ रहा है ब्लड? सर ही आ रहा है। यस सर, अच्छा। ब्लर आ रहा है। ठीक है, मैं सर वो आपको ब्लर रीड आ कर रहा है देता ना, हूँ फिर इसलिए सर से। हम सुन के लिख लेते हैं। हाँ ठीक है, वो नेटवर्क आज सुबह से वीक है। द एवरेज रिलेट, देखो मैं पूरा बोल रहा हूँ। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज, उसका देखो बोर्ड में क्या लिखा है, द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 of mass of carbon 12 isotope taken as 1 AMU। ठीक है, फिर फॉर्मूले के रूप में क्या लिखा है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन 1/12 of mass of carbon 12। So children, this is definition of एटॉमिक मास। यही डेफिनेशन एटॉमिक मास की फाइनल डेफिनेशन है। जब भी कोई आपसे बोले डिफाइन एटॉमिक मास, आपको ये
यही डेफिनेशन लिखना है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 1 AMU। सर हम्म सर ये जो एवरेज एटॉमिक मास की डेफिनेशन है किसी भी एलिमेंट की, तो फिर इसको पता लगाने के लिए हमें कार्बन 12 के 1/12 को मास का पता लगाना जरूरी तो नहीं है ना? मतलब नहीं। वो नहीं पता होगा तब भी हम किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं कार्बन क्या? 12 का मास कितना होता है? हाँ बिल्कुल, देखो ये हमने लिया कार्बन 12 का मास कितना होता है 12, ठीक। तो 1/12 ऑफ 12 कितना हो गया 1, मतलब 1 AMU हो गया। 1 AMU मतलब कितना हो गया मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन से ही कंपेयर कर रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम से कोई एलिमेंट कितने टाइम्स हैवी है। बस हाइड्रोजन नहीं लिया स्टैंडर्ड के रूप में, कार्बन लिया, क्योंकि कार्बन का जो 12 आइसोटॉप है वेरी वेरी स्टेबल आइसोटॉप है, रिएक्ट नहीं करता आसानी से, और बहुत ज़्यादा परसेंटेज अबेंडेंस से पाया जाता है, अराउंड 99.9%। ठीक है, उसको कार्बन की मेजर करने की जरूरत नहीं है, वो होता ही है कार्बन का 12। तो 1/12 ऑफ 12 क्या हो जाएगा 1, यही डेफिनेशन हो जाती है 1 AMU की। व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU is the unit of atomic mass which is defined as the relative mass of an atom of an element as compared to 1/12 of mass of carbon 12। तो मतलब 1 AMU बेसिकली हाइड्रोजन से ही रिलेटेड है, मतलब एक प्रोटॉन के मास से। yes, बस 1 AMU मतलब मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। आप लिख लीजिए डेफिनेशन ऑफ 1 AMU। नेक्स्ट हेडिंग राइट डाउन 1 AMU। Write down AMU stands for atomic mass unit, atomic mass unit। It can be defined as mass of particles equal to 1/12 of mass of carbon 12 atom taken as, अच्छा taken as लिखने की जरूरत ही नहीं है। It can be defined as mass of particles equal to 1/12 of mass of carbon 12 atom। क्योंकि कार्बन 12 का मास हो गया 12, 12 का 1/12 कितना हो जाएगा 1। So 1 AMU stands for atomic mass unit. It is defined as the mass of particles equal to 1/12 of mass of carbon 12। ठीक है, now the question is what do you mean by molecules? ठीक है, एटॉमिक मास के बाद हम आ जाते हैं, एटॉमिक मास की सारी डेफिनेशन समझ में आ गई, डिफरेंस समझ में आ गया बिटवीन एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक मास। अब Yes, फाइनल सुन लीजिए कि एटॉमिक मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर नहीं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 टेकन एज 1 AMU। मतलब the number of times the average mass of an atom of an element is heavier than 1/12 of mass of carbon 12। ये फाइनल कंक्लूजन है। उसके बीच में जितना हमने पढ़ा है वो इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था डेफिनेशन का। क्लियर? एनी कंफ्यूजन?
नो सर। किंजल? नो सर। नो। दो ही चीज दिमाग में रखनी है बस, काम की चीज बस इतनी है, बाकी सब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था कि डेफिनेशन कैसे आई, क्यों आई। ठीक है, एक तो एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में डिफरेंस। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया। फिर एटॉमिक मास की अलग अलग डेफिनेशन मैंने बताई आपको। पहला तो मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, वो तो हम समझने के लिए है, जनरल कंसेंस उसके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर हाइड्रोजन के टर्म्स में डिफाइन किया। उसके बाद कार्बन 12 के टर्म्स में रिलेटिव मास के रूप में डिफाइन किया। बाद में क्लोरीन जैसे आइसोटॉप्स आए तो उसमें एवरेज भी निकाल लिया। तो सभी कॉन्सेप्ट को ऐड करके मिक्स करके जो फाइनल डेफिनेशन बनाई गई वो क्या हो गई कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट as compared to 1/12 of mass of carbon 12 taken as 1 AMU. क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए मॉलिक्यूल्स। एटम्स के बारे में स्टडी होगी बहुत कुछ, आप मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद इसी तरीके से हम मॉलिकुलर मास लिखेंगे। अच्छा, आपने हेडिंग लिख ली क्या? डोंट राइट मॉलिक्यूल, थोड़ा सा एक चीज और लिख लीजिए, ग्राम एटॉमिक मास। पहले मॉलिक्यूल को काट दो, जहां डेफिनेशन लिखी थी आप लिख लीजिए ग्राम एटॉमिक मास, GRAM, ग्राम एटॉमिक मास। The atomic mass of an element expressed in grams. The atomic mass of an element expressed in grams is known as gram atomic mass. ठीक है, atomic mass of an element expressed in grams is known as gram atomic mass. देखो, अभी हमने आपको बताया कि एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, AMU में या स्मॉल यू। स्मॉल यू मतलब यूनिफाइड मास, उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम यूनिट चेंज कर दें, AMU की जगह पे यूनिट कर दें ग्राम, G, देन इट बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास। अब दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? एटॉमिक मास यूनिट बहुत छोटी यूनिट होती है, बहुत छोटी यूनिट होती है, जबकि ग्राम एक बड़ी यूनिट है और उसको हम मेजर कर सकते हैं। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट always consist of a fixed number of atoms of the element which is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms of the element. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 AMU। अगर वो AMU की जगह पे हम G कर दें, ग्राम कर दें, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन contains how many hydrogen atoms? 6.022 into 10 power 23 hydrogen atoms are present in 1 gram of hydrogen. 1 AMU कितने का मास था, एक हाइड्रोजन एटम का, जबकि 1 ग्राम कितने हाइड्रोजन एटम्स का मास होगा, 6.022 into 10 power 23। ठीक है, अब लिख लीजिए 1 ग्राम एटॉमिक मास, 1 मत लिखना, सीधे लिखना ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the mass of 6.022 into 10 to the power 23 6.022 into 10 power 23 atoms of the element. Full stop. This number 6.022 into 10 to the power 23 this number 6.022 into 10 to the power 23
is known as Avogadro's number. क्या बोलते हैं इसको? स्पेलिंग क्या है? Avogadro's number और Avogadro's constant. Avogadro's constant का मतलब कितना होता है? 6.022 into 10 to the power 23 atoms और molecules. ठीक है, Avogadro's constant और Avogadro's number means 6.022 into 10 power 23 atoms or molecules or any other particle. अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की ही बात कर रहे हैं तो मास एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एग्जाम्पल लिख लीजिए, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? 1 AMU, जबकि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ जल्दी से। मास ऑफ 6.022 इंटू 10 पावर 1 23 gram. हाइड्रोजन, 1 gram. वेरी गुड, 1.0 ग्राम। तो अगर हम ग्राम एटॉमिक मास लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन्स 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ द एलिमेंट। इसके बाद आप हेडिंग डाल दीजिएगा मॉलिक्यूल, दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। So children, switch on your camera.